in very soon, Wazir will be out on this Friday. So we are here. I think most of you have seen a lot of film. Some of you have actually seen 15-20 minutes of the film. Whoever came to our office, we just said, come and see the film, which is unusual. ज़्यादातर लोग जो फिल्में बनाते हैं वो दिखाते नहीं हैं. And also, a lot of you have seen a lot of material that's on television. So we are here to answer any questions, to let you know more and more about Wazir, whatever you wish to know. It's taken us a lot of time to make this film. 4-5 साल लिखने को लगे, फिर हिंदी में 2 साल और लगे लिखने को. So I will now first request Amit ji to speak to you guys and give us his viewpoint. नहीं सर, आप कुछ बोलिए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि आप नहीं वजीर. आप लोगों को डाउट है ना कि बच्चन सर नहीं है, तो मैं इनको दे रहा हूँ ये वजीर में है, लीजिए. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पर. अगर आप पूछेंगे तो उसका उत्तर देने का प्रयत्न करें. It's been a long journey. Almost been 3 years that we started this journey in Wazir. Actually, journey started a long time back, almost 35 years back when Vinod sir actually wrote the story. And so I think it's one of, in the history of Indian cinema, I don't think anybody has worked on a story for that long. So I think it's one of a kind that way. So we are all quite excited to see how you all will receive it. Like he said, some of you have already seen 15 minutes of the film, and the feedback has been very overwhelming, positive. And I think I speak for everyone here that we are all just waiting in anticipation for all of you to watch the film and tell us what you think about it. So anyway, now I'll keep the eyes open for questions. So please feel free to ask. Please, one request. Please refrain your questions with respect to the film. विजय जी, पहले तो आपको बधाई की शादी की मुबारकबाद हो. और दूसरी बात ये कि आप खुद कह रहे हैं कि इस फिल्म को 2 बड़े दिग्गजों ने 5 साल में लिखा, और इसमें इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, तो क्या कहीं कोई प्रेशर था आपके ऊपर कि आप सबको जस्टिफाई कर पाएंगे, अच्छे से फिल्म बना पाएंगे? इस बात का प्रेशर था? Definitely, pressure. I would be lying if I said that I didn't have pressure. The pressure was definitely there because, like I told you, this is the story. 5 साल, 12 साल उन्होंने work किया उस script. So the fact that I had to make that script my own and justify their vision, that pressure was always there. And more than anyone, more than the audience, my aim was to make sure that they are happy with what I do. अमित सर, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज स्टेशन. Just to answer that, because I know the kind of pressure he had, but I have to tell you this. This is not something I've said before. I have seen the film now a few times, and while he was getting married, I felt very proud of him. He has done a great job, and I am truly proud of him. Thank you. अमित सर, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज स्टेशन. सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सर आप सभी को. और हर साल सर हम लोग देखते हैं जब भी मूवी आपकी आती है कुछ अलग हम लोगों को दिखाई देता है. इतने वर्ष बीत गए सर, इतने साल बीत गए. कितना चैलेंजिंग जॉब जो है सर, जो आप खुद जब पर्दे पर देखते हैं अपनी फिल्म को, कौन सा ऐसा लगता है सर इन गए वर्षों में कि सबसे चैलेंजिंग अभी तक का जो किरदार आपने निभाया है स्क्रीन पर, वो कौन सा होगा सर? सभी चैलेंजिंग है हमारे. तो सबसे एक होता है सबसे तुरंत जहन में जो अंतर नहीं कर सकता इस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल अलग ही इस तरीके का शायद पहले हम लोगों ने देखा है. जब कलाकार हमारी उम्र तक पहुंचता है किसी तरह के रोल में, अब इनकी तरह तो मिलेगा, जो मिलता है उसको स्वीकार. हेलो, आप फिल्म देख चुके हैं तो हमें, अमित जी आप फिल्म देख चुके हैं तो हमें कुछ बताना चाहेंगे? इनकी एक बात इन्होंने कही नहीं जो मैं कहना चाहूँगा.
कि इस फिल्म में इनकी लेग्स नहीं है, तो इन्होंने सारी फिल्म में वो बिल्कुल हिलने नहीं दिया लेग्स को। बहुत तकलीफ से गुजरे ये, इसके लिए आपका जो सवाल था वो इनको थोड़ा लगा कि मगर बहुत मुश्किल से ये गुजरे टू एक्चुअली परफॉर्म। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म अ पर्सन हु हैज नो लेग और आपकी है लेग और आप प्रिटेंड कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं कि है नहीं। एंड व्हेन यू सी द फिल्म यू विल सी व्हाट एन इनक्रेडिबल जॉब ही हैज डन। थैंक यू अगेन सर। Hello, over here. Amit ji, straight. अमित जी, सवाल ये है कि आप फिल्म देख चुके हैं आप, तो मैं चाहता हूँ कि जरा कुछ विस्तार से बताएंगे कि फिल्म कैसी होगी और जो फरहान अख्तर है, अदिति राव हैदरी, उनका काम कैसा लगा पर्दे पर देखे आपको, और आपके कुछ किरदार के बारे में अगर आप हमें बता सकें। जी, जैसा कि विनोद ने भी कहा, मेरा किरदार है एक कश्मीरी पंडित जो कि दिल्ली में रह रहा है। उनका नाम है ओमकार नाथ भट्ट, और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, एक दुर्घटना की वजह से उनकी टांगे कट जाती हैं और इनकी मुलाकात होती है या कि दो ऐसे शख्स हैं इस फिल्म में जिनकी जो परिस्थितियाँ वो एक जैसे पीछे उनको और किस तरह ये दोनों शख्स मिलते हैं, लेकिन जो वो समाधान ढूंढ रहे हैं और जो मैं समाधान ढूंढ रहा हूँ वो एक किस तरह ये दोनों मिल करके उस चरम सीमा तक पहुँचते हैं, ये कहानी है। अमित जी, कल जया जी ने भी फिल्म देखी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था, क्योंकि आजकल उन्हें कोई फिल्में जल्दी पसंद नहीं आती हैं, तो आप नहीं, फिर से बोलिए, सुना नहीं दे रहा। कल जया जी ने भी कल ये फिल्म देखी, हाँ जी, आप से कुछ बातें हुई या उनका कुछ रिएक्शन था? भाई साहब, मेरी पत्नी से बातचीत तो होगी। कुछ बातें की वजीर थी, कहना क्या चाह रहे हैं? आपका किरदार कैसा लगा, क्योंकि आजकल उन्हें कोई फिल्में पसंद नहीं आती है जल्दी, जी वो एक बार नहीं, वो दो बार देखने गए। Hello, Amit ji, ये you are बात right. वैसे मैं आपको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। जब वो पहली बार देखने गई तो हम लोग घबरा रहे थे, जब वो दूसरी बार देखने गई तो हम लोग शैंपेन पी रहे थे। ऐसा हुआ नहीं है कि 3 दिन में उन्होंने 2 बार फिल्म देखी है। अमित जी, विधु विनोद चोपड़ा जी से आपका बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, तो वो एज अ प्रोड्यूसर आपको ज़्यादा भाई डायरेक्टर या फिर राइटर? पहले तो ये हमारे मित्र बने और उसके बाद जब ये इंस्टीट्यूट से निकले थे तो इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उस समय इन्होंने मुझे दिखाई और मैंने इनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। 40-45 वर्ष लग गए, उसके बाद इन्होंने मुझे काम किया और एज ए प्रोड्यूसर, एक निर्देशक और निर्माता के तौर से तो इनकी खूबियाँ आपके सामने हैं, कई फिल्में आपने देखी हुई, लेकिन इनके साथ जब मैं पहली बार काम करने जा रहा था तो इनके साथ एक महिला थी जिन्होंने काम किया, अभिनेत्री। मैंने कहा आप इनके साथ काम करने जा रहे हैं। एक्चुअली 2 महिलाएं थी जिन्होंने मुझे चेतावनी दी। एक महिला ने कहा कि आप जा रहे हैं वहाँ काम करने इनके साथ, इससे बेहतर प्रोड्यूसर आपको नहीं मिलेगा, वो आपकी इतनी देख रेख करेंगे, इतना ख्याल रखेंगे आपका। और दूसरी महिला ने कहा कि आप जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं कल जा रहा हूँ। ठीक है, परसों आपसे मैं वापस मिलूंगी क्योंकि आप परसों वापस आ जाएंगे। ये मत पूछिए कि वो महिलाएं कौन है। Hi, I am from the Buzz Diary. मुझे अपनी याद है जब पहली बार ये आए तो सूट के 2 ही थे, तो मैंने इनको बोला सर 1-2 महीने की शूटिंग है। कहते नहीं भैया, मुझे तो बोला कि हफ्ते भर में वापस चला जाऊंगा, बाकी सामान अगले हफ्ते आएगा। Hi, I am from the Buzz Diary. To your left. अमित जी, आपसे एक सवाल पूछना था, आपके लेफ्ट में। You have worked with all the actors from the Angry Man time to today, from Shah Rukh Khan to Farhan. आमिर खान के साथ काम नहीं किया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? विनोद चोपड़ा फिल्म्स है, आप दोनों को साथ कब लेंगे? ये बताएं। सर से भी सवाल है। हम बताएंगे, जब वक्त आएगा तो जरूर बताएंगे। एक लंबू जी टिंगू जी हो जाएगा फिर से। 45 साल में आपको सिर्फ लंबू जी टिंगू जी याद है? अरे आपको पुरानी फिल्में सारी याद है, वही तो। Hi, this is Sohail from GlamCamp. You're right. Very happy New Year to all of you. साल की सबसे पहली फिल्म और सबसे बड़ी फिल्म है जा रही है, उसके लिए थोड़ा प्रेशर है एक्चुअली कि लुकिंग फॉरवर्ड एंड व्हाट वाज द रीजन टू शो लाइक a large portion of the film actually for the
देखिए आजकल क्या है कि जो फिल्म मार्केटिंग हो गई है वो मॉल में जाके नाचना, अलग अलग शोज पे जाके नाचना हो गई है। क्योंकि अगर आप नाचेंगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। अब हम जहाँ से हैं हमको ये बहुत अजीब लगता है कि हम बच्चन साहब से कहेंगे भैया मॉल में जाके नाच लो, हमसे नहीं होता। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो हमारा काम है वो हम दिखा रहे हैं आपको। कल हम पहली बार, शायद ऐसा होता नहीं इंडस्ट्री में, कि जो प्रोग्रामर्स हैं 60-70 जो पूरे हिंदुस्तान में सिनेमा चलाते हैं उनको हमने कहा ये आप देखिए फिल्म। तो कुछ लोग तो अचंभे में आके पूछ रहे कितने मिनट दिखा रहे हैं। सर हम पूरी फिल्म दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, अच्छी लगेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं लगेगी तो भी हमने तो अपनी पूरी मेहनत की। तो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम और तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं दोस्त। तो ये बेहतर है कि हम अपना काम आपके सामने रखें। जितने लोग इंटरव्यू करने आए हैं हमारे ऑफिस में, फरहान को, अमित जी को, अदिति को, बिजॉय को, सबको हमने पहले बोला 15 मिनट फिल्म देखिए, 20 मिनट, तो आपको पता तो चले कि फिल्म है क्या। तो ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में बोलिए आगे। सर ये एक साइड है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म आल्सो। सर वो तो हम मुन्ना भाई हैं, पैदा ही हुए हैं तब फुल कॉन्फिडेंस में चलते हैं। Hi sir, producer over here towards you. So which is 7 days left for the release. What sort of release are you planning to give to the film in India and overseas as far as this being count and everything is concerned? Can you say that? What? We are looking at, actually Reliance that's releasing the film does that more than me. I am a producer who is more creative producer than actually looking at how much. Yeah, I mean, I still don't know how much money we made in China on PK. I was asking somebody, यार कितने पैसे बने? So that actually Reliance will be able to answer, but it's a pretty big release. भरत जी यहाँ पर यो मेरा क्वेश्चन आपसे opinion पे सर, अमित जी से आप जब in this movie, तो what was your experience? जैसे अमित जी का डायलॉग तो रिवर में मेरे पास माँ है, तो क्या आपका डायलॉग होता है शुरुआत जैसा मेरे साथ कुछ तब की? मेरा ये मानना है कि इनके फिल्म इंडस्ट्री के आने के बाद जितने भी लोग आए हैं उन सब ने बहुत ज़्यादा हद तक, कुछ नहीं कम हद तक, जो भी प्रेरणा ली है इनसे, इंस्पिरेशन ली है इनसे, की वजह से सोचा है कि मुझे भी फिल्मों में काम करना है, कुछ ढंग का काम करना है, ये सारी चीज़ें। आई एम वन ऑफ दैट जनरेशन, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर। सो टू बी वर्किंग विद हिम, इनके साथ काम करना इज रियली अ ब्लेसिंग। You know, apart from the fact that I have great admiration for his work, enough for him as a person, just to see him working up close and personal, okay, be able to share that experience, something that he loves doing, which is acting in films. To be in films is something I love doing too. So to be able to share that with somebody who you've admired all your life is a very, very special experience. This film is all about mind game. This film is all about mind game actually. लगता है कि बॉलीवुड में इतने साल तक ये रहना भी एक माइंड गेम होता है actually. How do you go about taking films, going promotion and all other things? अब फरहान नहीं, देखिए दरअसल ये कहना आवश्यक होगा कि इस फिल्म का जो शीर्षक है वो वजीर है। जैसा कि आप जानते हैं ये वजीर शतरंज खेल के साथ जुड़ा हुआ है। शतरंज जो है ये केवल एक खेल के तौर पर ही नहीं है फिल्म। मेरा ऐसा मानना है, बहुत से लोग कल जिनके साथ में मिला तो उनको मैंने बताया था कि ये खूबी इस स्क्रिप्ट की ये है कि किस तरह इस खेल को हम कहानी के जीवन में भी उसमें प्रवेश किया। और इसमें एक प्यादा भी है, एक हाथी भी है, एक घोड़ा भी है, एक राजा भी है और एक वजीर भी। बहुत ही खूबसूरती से किस तरह इस कहानी को इन चीज़ों में पिरोया है, ये खूबी है इसमें। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो आपको कहानी बतानी पड़ेगी और नहीं कर सकता। फरहान सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि सर पहले की जो फिल्में होती थी उसमें जो एक्टर्स होते थे या एक्ट्रेसेस होते थे वो कोई तैयारी नहीं करते थे, मतलब उनकी लुक वही रहती थी जो फिल्म में।
लेकिन सर अब जितनी भी फिल्में आती हैं उसमें एक्टर्स बाल लंबे कर लेते हैं, मूंछें बढ़ा लेते हैं, कटवा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब कि एक्टिंग में उतनी दम नहीं रही है कि सर एक तो मैं वहाँ पर मैंने था नहीं तुमको कि तो जैसे ये कैसे दीवार हुआ। शोले जो भी फिल्में हैं नहीं मतलब बहुत सारी फिल्में थी जहाँ पर एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने अपना लुक चेंज किया है पहले भी, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है। मगर अब एक ऐसा वक्त है जो शायद लोग कम फिल्में करते हैं एक साथ, तो आपको ज़्यादा वक्त मिलता है कि आप अपना होलिया बदल सकें। तो अच्छी बात है अगर आप अपने आप को और भी जैसे कहते हैं झोंक दें अपने कैरेक्टर में, कुछ बहुत है। तो सर ये चेंजेस पर्सनल लाइफ में भी आती है, जैसे आप एक कॉप का रोल कर रहे हैं, डॉक्टर का रोल कर रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी आप डॉक्टर या कॉप हो जाते हैं। तो सर अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं किसी का फोन नंबर दे दूंगा जो जानता है क्या करना है, कहाँ जाना है, मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा। डोंट वरी, सब कुछ पहुँचूंगा। इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अमित सर, ज्योति फ्रॉम E24 न्यूज़पेपर सर यहाँ सर आपसे एक सवाल है कि अगर आप जवाब देना चाहें सर, शत्रुघ्न सिन्हा की बायोपिक बन रही है सर और आप दोनों के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं आप लोग, तो उसमें आपका भी जिक्र है, आपके रिलेशन का जिक्र, कुछ कहना चाहेंगे सर कि मुझसे मैं कहना चाहूँगी कि वो जा करके वजीर देखें, बहुत ही उम्दा फिल्म रद्द किया हमने, और मेरे मित्र हैं वो, और मेरे घर के सामने ही रहते हैं, मैं कहूँगा उनसे जरूर। अमित जी आपके सामने अमित जी यहाँ अमित जी, हाल ही में दिलवाले के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने ऐसा कहा था कि उन्हें अब्राहम और आराध्या की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? क्या आपको भी ये जोड़ी अच्छी लगती है? हाल ही में दिलवाले के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने ऐसा कहा था कि उन्हें माइक लगाओ और अमित सर, हाल ही में प्रमोशन के दौरान शाहरुख ने कहा था कि आराध्या और अब्राहम की जोड़ी सबसे अच्छी होगी आगे चलकर, जो वो उन्हें लॉन्च करेंगे, सबसे बेस्ट जोड़ी। उनके मुंह में घी शक्कर दूध मिलाई जितना कुछ सब हो। हेलो विनोद जी, विनोद जी, विदु जी, रमेश राव from Blockbuster Magazine. What I want to ask you, you are also a very good director. आप इतने अच्छी फिल्में बनाए हैं. What was your expectation from Vijay ji? आपने उनको डायरेक्शन का जो मौका दिया. How he has shaped her? Are you happy with his work and he has done a good job? Because you are acclaimed director. तो आपकी naturally आशाएं बड़ी-बड़ी होंगी कि यार ये ऐसे बनना चाहिए. I hope you are convinced with his direction. देखिए, जब राजू हिरानी हमारी लाइफ में आए थे MBBS के पहले, तो उन्होंने कुछ बहुत कम काम किया है। तो जो हमको राजू में प्रतिभा देखी, ऐसे बहुत अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं, वैसी ही प्रतिभा हमको इस विजय में नजर आई। और हमको एक इन्होंने फिल्म बनाई थी डेविड, उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन है जो आप जरूर देखिएगा। नील नितिन मुकेश हमारी फिल्म में भी वहीं से आए, वो बहुत बेहतरीन पोर्शन है। और मैंने वो देख के बोला ये कौन लड़का है, किसने बनाया, तो इनको मैंने ढूंढ निकाला। और इन्होंने जब ये वजीर बनी, काफी काम हुआ। अब इसका जवाब कि हाउ प्राउड आई एम ऑफ हिम, ये मैं तो कह ही चुका हूँ, लेकिन आप फ्राइडे को जरूर देखिएगा और इनका नंबर लेके रखिएगा, क्योंकि आज तक जो इन्होंने काम किया, जो ये काम किया, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई नया विजय पैदा हो गया। ये आप जरूर इनको बता दीजिए। विदु जी, एक सवाल आपसे है। विदु जी और अभिजात जी दोनों से आपसे सवाल है। आजकल जो माहौल चल रहा है, ये फिल्म उसमें कितनी सामयिक है? क्योंकि इस फिल्म में कहीं ना कहीं हम लोगों को जो ट्रेलर में दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं कम्युनल उस तरह की फीलिंग देता है। ये फिल्म में ये चीजें इंसिडेंटल है। जो इस फिल्म की जो बुनियाद है और जो मेन चीज है वो दोस्ती है, इन दोनों की दोस्ती है। तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। शायद वो ट्रेलर से वो इम्प्रेशन गई हो कि इसमें कुछ ऐसी चीजें है जरूर है जी, वो कश्मीरी पंडित है। हाँ बिल्कुल, बट वो दैट्स नॉट द फोकस ऑफ दैट फिल्म। द फोकस इज एब्सोल्युटली फ्रेंडशिप। It's a champagne film. It's absolutely entertaining. It's an intriguing thriller. And I recall that there was some skepticism when I was making predictions about Three Idiots and PK. I'm going to make one more prediction here. For the genre, it's an absolutely unique genre. And in that genre, this film is going to be a classic. This film is going to be remembered. It's utterly unique. For 4 years when they're scripting it,
the scripting process of this film prepared me to write like a Roman novel. It prepared me to write Three Idiots and subsequently PK. So this is an entirely unique story. It would be very wrong to compartmentalize it and say that it is this or that. And for what it is, I predict here, like I've done at the time of Three Idiots and PK, it's going to be a classic. और अगर एक किरदार का नाम ओमकारनाथ हर है, मैं भी कश्मीर से हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हर किरदार के नाम से ही वो पॉलिटिसाइज हो जाए। कुछ लोगों का नाम होता है यार, पंडित होते हैं, ओमकारनाथ हर उनकी लाइफ नहीं होती, एक्सीडेंट में हो जाता है। तो ये इट्स लाइक ही सेड, इट्स अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स एंड उनकी जिंदगी पे क्या गुजरता है। क्या आपको लगता है कि ये ऑस्कर की नेक्स्ट एंट्री होगी फिल्म? ऑस्कर के लिए ये नेक्स्ट एंट्री होगी? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाह रहा हूँ। जब मुझे कोई पीके में कहता था कि 300 करोड़ करेंगे, 400 करोड़ किया, मैं बिल्कुल उस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं किस बात में विश्वास करता हूँ कि हमने ये फिल्म 1 साल एडिट की, हमने पीके जून से 6 महीना डिले कर दी थी फिल्म, क्योंकि हमको लगा कि इस पे और काम है। हम आपको एक बात बता सकते हैं कि ऐसी फिल्म इस जॉनर में आपने नहीं देखी होगी। ये मैं आपको लिख के दे, ये कहाँ जाएगी, क्या होगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा सिर्फ एक ही काम है और सबका यहाँ कि हम आपको अपना बेस्ट काम करके दें, जो हमने कर दिया। उसके बाद वो आपको अच्छा लगे, ऑस्कर में जाए, मून के ऊपर कल को चले और नहीं चले, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वैन गॉग जैसे पेंटर की एक पेंटिंग जिंदगी भर नहीं बिकी। जब मुझे लोग बोलते हैं हिट एंड फ्लॉप, मैं यही सोचता हूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर, उनकी एक पेंटिंग नहीं बिकी। तो क्या मालूम कि वैन गॉग ग्रेट पेंटर नहीं थे? तो ये जो एप्रिसिएशन आपकी जो है उसका हमको बहुत ये है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम नन ऑफ अस आर सिटिंग हियर थिंकिंग अब हमको ये, वो हमारे जहन में है ही नहीं बात। बच्चन सर, शिवांगी है फ्रॉम लाइव इंडिया। मेरा सवाल आपसे है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री आशा पारेख जी पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था और वो पद्म भूषण अवार्ड के लिए उनके घर 12 माले सीढ़ियाँ चढ़कर गई थी, जो उन्हें बहुत खराब लगा। तो इस पर आप इंडस्ट्री से हैं सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने उनके साथ भी काम किया है। आशा पारेख जी ने जी, आशा पारेख जी लिफ्ट बंद था और वो 12 माले सीढ़ियाँ चढ़कर गई थी, उनसे ये कहते कि पद्मश्री नहीं, मुझे पद्म भूषण मिलना चाहिए जी। तो आपको लगता है तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से छवि खराब करने के लिए मुझे लगता है कि वो सीरियल चल दी गई और मिल गई है। सर, इस तरह से अवार्ड को लेकर अगर कोई नेता किसी बड़े आर्टिस्ट पे आरोप लगाता है, तो आपको लगता है कि ये इस तरह की बयान होनी चाहिए? और जिन्होंने दरखास्त की उनसे पूछिए, उनसे क्या पूछ रहे हैं? You know, please, you know what you do when you ask questions like that, you actually demote the beauty of this press conference to something else. So please don't. Thank you very much. पर ये फिल्म को किस जॉनर की पुट अप एक्चुअली फिल्म क्वाइट इंटेंस टाइप की लगती है और लोग इज आल्सो क्वाइट इंटेंस, तो इन व्हाट जॉनर I think that जहाँ तक हिंदी फिल्मों का ताल्लुक है, I would call this in the wholesome genre. Is what I would think. अभिजात आपके दाहिनी ओर प्रशांत पांडे टीवी नेटवर्क से। ये फिल्म कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बैकड्रॉप को भी एक तरह से छूती है। हाल फिलहाल पठानकोट में भी हमने देखा एक तरह का इंसिडेंट। जब फिल्म 40 वर्षों का सफर तय करती है और एक फिल्म इंग्लिश में बनी है, तो क्या कोई ऐसी घटना जो लेखक के बतौर आपके जहन में चिपक कर रहेगी वजीर को लिखते वक्त कि आपने, क्योंकि फिल्म का बैकड्रॉप दिल्ली में भी सच है? मैं ये एम्फसाइज करना चाहूँगा, ये फिल्म एक एंटरटेनिंग फिल्म है और वो इन चीज़ों से इतनी जुड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, और इस बात पर आप विश्वास कर लीजिए। मैं आपको बहुत नेकी से ये बता रहा हूँ, ये दोस्ती के बारे में ये फिल्म। एक अंग्रेजी में वर्ड है मैकगैफिन, तो वो जो एलिमेंट हमने यूज किया है, दैट्स अ मैकगैफिन। इट्स नॉट directly concerned with the film, it's a film of friendship, and I absolutely repeat that. As far as the seed of the film, Vinod will tell you a little more about it, but as I told you, I had the privilege of listening to this idea when I first met him in my life in 1994.
So that was 21 years ago. And in 2000, we started writing it. And between 2000 and 2004, we wrote it. At one point, we approached Mr. Bachchan to play this same role in English. And the script was not nearly as good as that time, but he was very kind to us. And so it was a dream. It was a dream to work with him. And subsequently, it was beautiful that a thinking actor like Farhan came on board and also a director. So he had some scripting suggestions. So the script just kept getting richer. And Bijoy's visual expertise came in. This mesmerizing young lady has done absolute wonders. So it's a genre which is not what you're saying. It's exactly what Farhan said. It's a wholesome entertainer. अदिति, अगला सवाल मेरा आपसे है। Thank God आपने पूछ लिया मुझसे। दो पूछ लिए। मैं काफी खुश थी आप ये सभी जितने दिग्गज कलाकार हैं या शख्सियत हैं, इन सभी को आपने देखा होगा। जब इनके साथ काम करते हैं तो किस तरह का मतलब वो फैन मोमेंट भी था कभी कभी? कभी कभी फर्स्ट आई लाइक टू विश एवरीवन अ रियली हैप्पी न्यू ईयर। और आपका न्यू ईयर और खुश बनाने के लिए प्लीज आप 1 जनवरी को जाके बंदी देखिए। पर मैं बोलना चाहूँगी दैट फॉर मी एकदम ही प्रिविलेज टू बी अराउंड पीपल जिनके लिए इतना रिस्पेक्ट होता है। एक blessed feeling. I felt very blessed to just be a part of a project like this, to have been picked for a project like this, to have spent every moment that I spent with Mr. Bachchan, with Farhan, with Vinod sir, Bijoy, Abhijat Joshi, every person associated with this film is really amazing. And for me it was that. And मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मुझे लोग पूछते हैं कि कैसा था, मुझे हमेशा लगता है, मुझे एक्चुअली फूलिश लगता है कि मैं मिस्टर बच्चन के बारे में क्या बोलूँ जो, पर मुझे ये भी लगता है कि एक जो पर्सनली वो आपसे कनेक्ट करते हैं, दैट इज समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट। और उनकी आंखों में जो हमेशा एक चमक होती है, दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज कीप विथ मी। एंड पहले तो आपने कभी ये कहा नहीं। For me, that's what I'd like to say कि जो भी मैं कहूँ उसके लिए actually words काफ़ी नहीं होंगे to say what I actually feel about being a part of a film like Wazeer. And I feel that for every girl or every actor who wants to be a part of the industry and has dreams, I'd like to tell them that dreams do come true, and I know that they do with this experience. अमित जी, आपकी राय जैसा उनकी बात को उधार दूंगा, रचनात्मकता की यही खास बात है कि कौन किसे रच रहा है पता नहीं चलता। जब आप इन नए टैलेंट्स को, इन यंग टैलेंट्स को देखते हैं और जब काम करते हैं और उनका पर्दे पर हुनर सामने आता है, तो किस तरह का, क्योंकि हर दशक में आपने तमाम अदाकारों के साथ काम किया है, तो आपके लिए ये अनुभव कैसा था? मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिलता है उनके साथ काम करने का। और जब भी मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत काम करते हैं ये सब, अपने अंदर बहुत सारी कमियां जो हैं वो देखने लगते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनसे कुछ सीख सकूंगा, क्योंकि जितनी भी नई पीढ़ी है ये इतने टैलेंटेड हैं और इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अद्भुत उनका एक कलाकृति है इन सब। और जब भी मैं आजकल की फिल्में देखता हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि अपनी पहली या दूसरी फिल्म में इतना बढ़िया काम कैसे कर लेते हैं। मैं तो आज भी 45 साल बाद भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन वो सब बेहतरीन तैयार है। मेरा ये सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का अवसर। ओके अमित जी, मेरा सवाल आपसे है। सर, फरहान आपको लक्ष्य फिल्म में डायरेक्ट भी कर चुके हैं और इस फिल्म में मेरे ख्याल पहली बार आपके साथ कैमरा शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इज अ बेटर एक्टर और बेटर डायरेक्टर? ये दोनों ही सक्षम हैं। और जब ये डायरेक्टर होते हैं तो डायरेक्टर होते हैं, जब ये कलाकार होते हैं सह कलाकार तो सह कलाकार होते हैं। इनके साथ एक कलाकार के रूप में मैंने काम किया और इनका मैंने रूप एक निर्देशक के रूप में भी देखा और अब एक सह कलाकार के। तो कहीं ना कहीं होता है कभी कभी, क्योंकि ये निर्देशक है तो कभी कभी कुछ ऐसी खामी या ऐसी कुछ छोटी सी बात ये ढूंढ निकालेंगे किसी शॉट में, यार अगर इसको ऐसे किया जाए तो कैसा रहेगा, वो फिल्म की भलाई हो जाती है उसमें।
क्या वजीर के दौरान इस तरह की बात हुई है, वाकया पेश आया? हाँ जी, क्या वजीर की मेकिंग के दौरान इस तरह का कुछ वाकया पेश आया, जैसे आपने कहा? क्योंकि जैसे कि अभी विनोद कह रहे थे, सब हम लोग मिलजुल कर भी काम करते हैं, और चाहे वो जय हो, इजाद हो, अदिति हो, फरहान हो, विनोद हो, सब अपना अपना दृष्टिकोण देते हैं, कोई बात होती है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि कई बार इस स्क्रिप्ट को एक तो व्यक्तिगत रूप से पढ़ा गया, विनोद ने आकर के मुझे सुनाया, फिर फरहान को सुनाया, फिर फरहान और मैं अकेले बैठे, फिर उसके बाद पूरा स्टारकास्ट बैठा, कई बार रीडिंग्स हुई इसकी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी आपको कहना सुनना है उस समय कह देना चाहिए, ताकि एक बार सेट पे जाएं तो फिर केवल उसको काम करें, बहस न करें। यदा कदा कभी कोई एक बात निकल आती है तो उस समय हम परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात होती है कि साथ बैठ करके पूरी चीज़ हम पढ़ते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसा लगा आपको, क्या इसमें आपको कुछ कमी लगी। और कई बार ऐसा होता है, फरहान ने कई बार कुछ ऐसे सजेशन दिए, या आदिति ने ऐसे सजेशन दिए, या विजय ने या विनोद ने ऐसे सजेशन दिए जहाँ पर हमको लगा कि हाँ ये ठीक है और इनकी राय को मानना चाहिए, वो उसी समय हम लोग तय कर लेते हैं, ताकि जब सेट पे जाएँ कोई बहस नहीं। या बिफोर आई आंसर, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पहले ये फिल्म को रिहर्स किया, हम लोग मैरियट होटल में मिले।